کرنا چاہیے. کئی لوگوں کا خیال ہے کہ شاید پاکستان کو نیوکلیئر ایسڈز یا ایٹم بم بیچ کر پاکستان میں لوگوں کے لیے روٹی خرید لینی چاہیے. اور ایسی ہی ایک بات کی ہے فخر یوسف زئی صاحب کے چینل پہ منیر احمد صاحب نے, وہ ہم سنتے ہیں. اور ایٹم بم کو کر رہے ہو جو ایٹم بم وہ سر میں یہ کہتا ہوں اب آپ اتنی بڑی توہین ایٹم بم کی نہیں ہو سکتی, نیوکلیئر پاور کی اتنی بڑی توہین نہیں ہو سکتی جتنی ہم نے اپنے لیے منتخب کی ہے, اور اس کے لیے ہم نے بڑی محنت سے اپنے لیے ذلت کا راستہ تیار کیا ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ ہمیں سرنڈر کر دینا چاہیے, ایٹم بم بیچ کے نا ہمیں پیٹرول شٹرول اور بجلی لے لینی چاہیے. میرا خیال ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارے وہ کچھ حکمران تھے جنہوں نے یہ مہربانی فرمائی اور اس پروسیس کو چلایا, اور کوئی سیاستدان کے ساتھ ساتھ کچھ سائنسدان ایسے تھے جنہوں نے قومی مفاد کے اندر اس انویسٹمنٹ میں سے ایک اچھا پروڈکٹ نکالا. ہم سے بعد میں اپنا اسپیس کا جو مشن ہے وہ سٹارٹ کیا تھا. پہلا ان کا مس کر گیا, دوسرا جو ہے وہ کریش لینڈنگ کر گیا, اور تیسرے میں لینڈنگ کر دی اور ساؤتھ پول پہ لینڈنگ کی جہاں پہ ابھی تک کوئی نہیں اترا. یعنی وہ دنیا کا پہلا ملک ہے جو ساؤتھ پول پہ اترا, اور ویسے وہ ٹاپ 3 میں اکانومی کے لحاظ سے, باقی چیزوں کے لحاظ سے. اور ہم سر ایسے مطلب منافقت کی باتیں کر رہے ہیں, ایسی بڑی بڑی باتیں آج بھی ہم کر رہے ہیں. ہمارے یہاں ایک وزیر حامد صاحب ہے, وہ کہتے ہیں جی میں تو مانتا نہیں ہوں کہ وہ اترے ہیں, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ابھی انہوں نے مجھے دیا. سر کیا مطلب اب کس لیول کے لوگ ہیں, بلیو می, مطلب اب وہ غصہ بھی نہیں آتا. انسان کہتے ہیں کہ میں کیا کہوں ایسے لوگوں کو. نہیں سر, ایسے لوگوں کے اوپر نا آپ کو ہنسنا چاہیے کہ ایک وقت آتا ہے نا کہ جب لوگ دیکھیں ایک چیز, ایک نا ہماری ایک عجیب نیشنل سائیکی میں ایک اور بڑا ہے. ہم اپنے اگر معاشرے میں اپنے ارد گرد ہی دیکھ لیں نا, ہم کبھی دوسرے کی اچیومنٹ کو اپریشیٹ نہیں کرتے. تو انڈیا کی کسی اچیومنٹ کو کیسے اپریشیٹ کر سکتے ہیں؟ وہ دشمن ملک ہے, وہ جو بھی کرے گا بالکل غلط کرے گا, وہ تو ہے ہی نہیں. I'm sorry, ہم نے نہیں کرنا یار. سر چاند پہ کیسے اتر سکتا ہے؟ چاند پہ تو ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے. چند ساڈا ہے فخر, چند ساڈا ہے, ساڈے چند پہ کوئی نہیں اتر سکتا. بالکل ہمارے فلیگ پہ جو بنا ہوا ہے وہی چند ہمارا. جی, تو یہ تھے منیر احمد صاحب جو یہ کہہ رہے تھے کہ شاید پاکستان کو نیوکلیئر ایسٹس بیچ کر اور اپنے لوگوں کے لیے پیٹرول اور بجلی اور کھانا لے لینا چاہیے. اب پاکستان میں یہ سوچ بھی آ گئی ہے. اس سے پہلے ہم نے آپ کو دکھایا تھا, اور ہم نے بلکہ بات کی تھی اپنے شو میں جو ہے اویس اقبال صاحب سے, اور ہم نے 2 نیشن تھیوری کے اوپر بات کی تھی, اور کافی اعتراضات بھی اٹھائے گئے تھے. اور اس کے بعد لوگوں نے بڑا برا بھلا کہا, بہت شور مچایا اور بڑا چیخے چلائے کہ جی ایسے کیسے آپ نے جو ہے یہ بات کی ہے, اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن خیر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان میں جو ہے اس وقت لوگ جو ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ پریشان ہیں بجلی کے بلوں سے. آج بھی فیصل آباد, یعنی کہ جو پہلے لائل پور کہلاتا تھا اور اب ہم نے اس کا نام نہ جانے کیوں فیصل آباد رکھ دیا ہے, جی وہاں پر بھی ایک جو مزدور تھا, یعنی کہ جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتا تھا, ایک محنت کش, اس نے جی خودکشی کر لی ہے. اور بتایا یہ گیا ہے کہ اس کے گھر کا 40,000 کا بجلی کا بل آیا تھا, اور اس نے سوچا کہ یہ بل بھلا وہ کیسے دے سکتا ہے, اور اسی ٹینشن کی وجہ سے اس بیچارے نے اپنے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی. لیکن اس سے ہمارے جو لوگ ہیں, یعنی ہماری جو بیوروکریٹ ہے, ہماری جو ایجنسیز ہیں, ہمارے جو فوجی ہیں, یعنی کہ جو وہ فوجیوں کی بات کر رہی ہوں جو بڑے عہدوں پر ہیں, جو ریٹائرڈ فوجی ہیں, جو جنرلز ہیں, جو کھاؤ پیو پارٹی جو عاصمہ جہانگیر صاحبہ کہا کرتی تھی, ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ظاہر فرق پڑنا بھی نہیں چاہیے, اس لیے کہ عام آدمی کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے اس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. مگر یہ ضرور ہے کہ اس بیچارے کے 2 معصوم بچے ہیں اور وہ اس دنیا سے جا چکا ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر جو تماشا چل رہا ہے. پہلے تو بجلی کے بل میں یعنی الیکٹریسٹی کے بل میں انہوں نے ٹی وی کے, یعنی اگر آپ کے پاس ٹی وی ہے یا آپ کے پاس ٹی وی نہیں ہے, آپ ٹی وی دیکھتے ہیں یا آپ ٹی وی نہیں دیکھتے ہیں, اس کی فیس بھی ایڈ کر دی گئی تھی کہ جی آپ کے بجلی کے بل کے ساتھ آپ کو اپنے
टीवी चैनल जो ये सॉरी टीवी सेट जो है उसकी भी फीस देनी है। उसके बाद इन्होंने, आप जानते हैं 9 मई को जो कुछ हुआ था, 9 मई को जिस तरह से जीएचक्यू पे हमला किया गया और कोयटा में रेडियो स्टेशन और ये सब कुछ तोड़ा फोड़ा गया, जलाया गया, उसके जवाब में जी जो पब्लिक जिसका कोई लेना देना नहीं था उस बात से, उनके ऊपर ये जुर्माना या ये फाइन लगाया गया कि जी अब आपको अपने बिजली के बिल के साथ रेडियो के भी आपको चार्जेस देने होंगे, यानी कि आप रेडियो सुनते हैं या नहीं सुनते, या आपके दादा जान अगर किसी जमाने में 47 से पहले या 47 के बाद रेडियो सुनते थे तो वो फ्री में रेडियो सुन के निकल गए। तो इसलिए अब जाहिर है जो दादाजी ने मेरी वाट लगाई तो दादाजी ने रेडियो सुना और दादाजी के रेडियो सुनने की फीस मुझे अदा करनी है। जी हाँ, अब जो बिजली का बिल आएगा उसमें रेडियो फीस भी होगी और टीवी की फीस तो पहले ही ले रहे हैं। उसके साथ साथ जो चार्जेस लगाए गए हैं, यानी कि अगर किसी का 2000 का बिल है तो उसमें, और वैसे तो 2000 का बिल शायद ही किसी का होगा, सबके बिल लंबे लंबे चौड़े चौड़े आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी का 2000 का बिल है फॉर एग्जांपल, तो उसमें 48% जो है वो आपको जी चार्जेस लगाए गए हैं, ड्यूटी लगाई गई है, आपको टैक्स जो है वो लगाए गए हैं, यानी कि आपका बिल जो है उसमें 48% जो है वो टैक्सेस शामिल करके आपका बिल कहीं से कहीं पहुंचा दिया जाएगा। और अब ये भी बताया जा रहा है कि अभी इस मंथ अगस्त में जिन लोगों ने बिजली के बिल पे किए हैं या जो बेचारे करते जा रहे हैं, उनको पर यूनिट 65 रुपीज पर यूनिट जो है बिजली पड़ी है। और नेक्स्ट बिल जो आएगा, यानी सितंबर में जो बिल आएगा अगस्त का, वो जी 90 रुपीज, जी हाँ मैं सही बता रही हूँ, 90 रुपीज पर यूनिट जो है वो अदा करने होंगे। अगर वो ना दिया तो फिर आप जानते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाएगी, बिजली काट दी जाएगी। लेकिन बहरहाल जो लोग इस बात के लिए तैयार है, मेरे ख्याल है मजीद लोग फंदे तैयार कर रहे होंगे, मजीद लोग जहर ढूंढ रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि कहां से कौन से पुल से कूद कर हमने खुदकुशी करनी है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि खन्ना पुल, जी हाँ रावलपिंडी में एक जगह है खन्ना पुल, और वहां से एक साहब ने जो है कूद के 3-4 दिन पहले ही सुसाइड किया और बेचारे जो है वो बिल भी अदा नहीं कर पा रहे थे और यही रीजन बताया गया है। लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर कोई इस बात का असर नहीं हो रहा और किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं ले रहे, उल्टा सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अगर न्यूज चल रही है तो वो चल रही है इमरान खान की। इमरान खान की जो है जमानत हो जाती है और इमरान खान को फिर से जेल में बंद कर देते हैं, इमरान खान को किसी और केस में पकड़ लेते हैं। इस वक्त गवर्नमेंट का पूरा फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के ऊपर है कि किस तरह से इमरान खान को जेल में रखा जाए और किस तरह से जो है पब्लिक की अटेंशन जो है वो भटकाई जाए। साथ साथ जी एक और न्यूज जो हमारे यहाँ चल रही है आजकल, जो कि बड़ी अजीब सी है, लेकिन हर अजीब सी होनी मुझे नहीं कहना चाहिए कि अजीब सी है, क्योंकि हम हमेशा से यही करते आए हैं। जब भी हमारे यहाँ कोई गड़बड़ होती है, जब भी हमारे यहाँ कोई हंगामा होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, हम पहला इल्जाम लगा देते हैं भारत के ऊपर, और इस बार भी यही हुआ है। जो आप सब जानते ही हैं कि जो चर्चेस जलाए गए, यानी कि 20 या 21 चर्चेस को बताया गया था कि जला दिए, तोड़ दिए, उसके बाद जो क्रिश्चियंस हैं उनके घर भी तोड़ दिए, जला दिए। उसके लिए जी हमारे यहाँ के कई लोगों का कहना ये है, जिसमें के बड़े बड़े लोग शामिल हैं, उनका कहना ये है कि जी ये साजिश पड़ोसी मुल्क की थी। अब जाहिर है पड़ोसी मुल्क में ये किसको कह रहे हैं, अफगानिस्तान को तो मेरे ख्याल नहीं कह रहे हैं, इसलिए कि अफगानिस्तान के लोगों को कहेंगे तो वो तो देंगे 2 कान के नीचे। और चाइना को भी नहीं कह रहे, ईरान को भी नहीं कह रहे, बांग्लादेश को भी नहीं कह रहे। वैसे बांग्लादेश हमारे पड़ोस में नहीं, लेकिन खैर बांग्लादेश को भी नहीं कह रहे, तो फिर बचा कौन? जाहिर है वही लोग जो बेचारे हर बार जिनके ऊपर हम ही अटैक करते हैं और हम ही मुकर जाते हैं और हम ही नुकसान करते हैं और हम ही कहते हैं कि जी हम विक्टिम तो हम है, आपने हमारा जो है बेड़ा गर्क किया, हमने तो अपना कुछ नहीं किया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारत की। एक बार फिर भारत की तरफ इशारा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी जो कुछ हुआ और जिस तरह से चर्चेस जले और जो हंगामा हुआ उसके पीछे भी जी भारत का हाथ है। अब खैर इस तरह की बातें सुन के यकीनन ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी अब लोग हंसने लगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक हल्की फुल्की न्यूज भी आपको दे दूं। बात हम करेंगे जी यासीन मलिक की। जी हाँ, आप सब जानते हैं यासीन मलिक की जो वाइफ है यानी कि मशाल मलिक, उनको प्राइम मिनिस्टर के का स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर लगा दिया गया केयरटेकर गवर्नमेंट में। और एक बार फिर लोग जो है हमारे यहाँ के जो टीवी चैनल्स पे जाते हैं, जो कहीं और बात करते हैं, यासीन मलिक को फ्रीडम फाइटर बता रहे हैं।
पाकिस्तान इस हाल पे क्यों है, पाकिस्तान FATF में क्यों है, पाकिस्तान में हर रोज जो है वो बाहर कोई भी यूरोपियन कंट्री हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे गल्फ कंट्रीज हो, कोई भी हमारा भरोसा क्यों नहीं करता? हमारा भरोसा इसी वजह से नहीं करता कि एक तो हम जो टेररिस्ट होते हैं उनको हम हमेशा से फ्रीडम फाइटर बताते हैं, चाहे वो यासीन मलिक हो जिसने अपने सारे गुनाह खुद कबूले। अभी तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से लोग चल रहे हैं तो यकीनन जो अमेरिका में जो डॉक्टर पकड़ा गया है जो कि दाइश के साथ मिला हुआ था और अमेरिका पे ही अटैक करने की कोशिश कर रहा था या प्लानिंग कर रहा था, जिसको 18 साल की जेल हुई है, यकीनन अब थोड़े दिन के बाद पाकिस्तान इसके लिए भी खड़ा हो जाएगा और कहेगा जी ये फ्रीडम फाइटर है, इसे हमें वापस करो। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए भी इसी किस्म की बातें पाकिस्तान से होती रही हैं और शायद आगे भी होती रहेंगी। अब जी यासीन मलिक के लिए भी यही कहा जा रहा है कि जी वो तो फ्रीडम फाइटर है, यानी कि जिसको टेररिस्ट बताया जाए वो पाकिस्तान के लिए फ्रीडम फाइटर होता है। इसी तरीके से हाल कर दिया है पाकिस्तान का, और इन लोगों ने जो इस किस्म के टेररिस्ट और इस किस्म के जो मुजरिम होते हैं उनका साथ देते हैं। हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो, चाहे दाऊद इब्राहिम हो, सबको ही हमने जो है हीरो बना के रखा है। सभी पाकिस्तान में हीरो हैं, इनके खिलाफ कोई बात नहीं हो सकती, इनको तो जी जेल भी नहीं हो सकती। कहा तो है इन्होंने कि हाफिज सईद को 31 इयर्स की जेल की है, मगर वो जेल में नहीं है, वो अपने घर में ही बंद है, या कह लीजिए कि बाहर भी हो सकता है, घूम फिर रहा हो, हम कौन सा रोज चेक करते हैं कोई जाकर। लेकिन इनका कहना ये है, यानी कि हमारी एजेंसीज का कहना ये है, देखिए ये पिक्चर, खैर इसको देख के मत समझिएगा कि हाफिज सईद जेल में, ये मेरे ख्याल है फोटोशॉप है, ये फोटोशॉप पिक्चर थी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जी हाफिज सईद को भी हाउस अरेस्ट ही किया गया है, और इसी तरीके से हमने 10 साल तक जो है, आप जानते हैं कि उसामा बिन लादेन को भी पाला। 10 साल वो एबटाबाद में मजे से रहता रहा अपनी पूरी फैमिली के साथ, और हमारी एजेंसीज, हमारी नंबर 1 एजेंसी कहती है जी हमें तो पता ही नहीं। और उसके बाद जब किसी तरीके से खबर मिली कि वो कहाँ है, तो 10 साल के बाद जाकर अमेरिका की तरफ से जो ड्रोन अटैक किए गए और उसको जिस तरह से मारा गया, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर 10 साल उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में था तो हमारी एजेंसीज को मालूम क्यों नहीं था, क्या कर रहे थे, मटर छील रहे थे या क्या कर रहे थे लोग। लेकिन उसके साथ अगर इन्हें पता था, जो कि मेरा ख्याल है पता ही होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 10 साल आपको यही मालूम ना हो कि आप क्या कौन रह रहा है और क्या हो रहा है। तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी बेवकूफ़ी और इससे बड़ी लापरवाही हो नहीं सकती। तो मेरे ख्याल इन्हें पता था, सिर्फ ये बता नहीं रहे थे। और इसी तरीके से चाहे वो उसामा बिन लादेन हो, हाफिज सईद हो, या फिर मसूद अजहर हो, या आप कह लीजिए कि दाऊद इब्राहिम तो वैसे भी इंडियन सिटीजन है, इन सबको और इन जैसे बेशुमार लोगों को पाकिस्तान जो है वो प्रोटेक्शन भी देता है, फंड भी करता है, और हर तरह से बचा के अपने यहाँ भी रखता है। और उसके बाद हम कहते हैं कि नहीं जी हमें टेरर कंट्री ना कहा जाए। अब बार बार हमारे आर्मी चीफ जो है वो कहते हैं कि जी हम टेररिज्म को खत्म करेंगे, हम टेररिज्म के खिलाफ जंग कर रहे हैं। ये बात आज के नहीं, जितने भी आर्मी चीफ पाकिस्तान के आए और गए उन सब ने यही बात की कि जी हम तो पाकिस्तान को टेररिस्ट जो है वो नहीं समझते, या पाकिस्तान के अंदर से टेररिज्म हम खत्म करेंगे, और ये जितने लोग भी बैठे हैं इन सबको अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन अरेस्ट हुआ तो कोई भी नहीं आज तक, और इसी किस्म का भाषण जो है वो हमारी आर्मी और हमारी एजेंसीज की तरफ से आता रहता है। वैसे मैंने कभी भी इंडियन आर्मी चीफ का कोई कमेंट या इंडियन आर्मी चीफ का कोई बयान या कोई भाषण देखा नहीं। तो मुझे पूछना ये था अपने इंडियन दोस्तों से कि आपके आर्मी चीफ जो हैं वो ड्यूटी पर आते भी हैं या घर बैठे सैलरी लेते हैं? इसलिए कि भाई हमारे आर्मी चीफ जो है वो तो हमेशा भाषण भी देते हैं, बात भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, और स्टेटमेंट भी धड़ाधड़ देते हैं। तो फिर आपकी फौज